Pooja Kumari from Nalgonda. तैयार है जी प्रणाम। मेरा नाम संतोष कुमार है और हम आरपीएस कॉलेज चकियात महाराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैशाली से आया हूँ। बिहार यूनिवर्सिटी से हम हैं। धन्यवाद। मंच पर आसीन विभागाध्यक्ष मैडम शहनाज जमील, एसोसिएट प्रोफेसर गजेंद्र प्रसाद सर, एसोसिएट प्रोफेसर आर.एन. झा सर, फॉर्मर प्रोफेसर विद्यानंद झा सर और के साहू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया। आप सभी साथियों का और सीनियर का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी बात को यहाँ पर सुना। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, हम सीएम साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। Hi everyone, my name is Mohan Kumar. I am from SEM Science College, Dargah. Good morning all of you. My name is Vikas Kumar. I am graduate in botany in SEM Science College, Dargah. Thank you. Good morning everyone. I am Tush Kumar. I am graduate from CM Science College. I have graduated. I am a graduate of. I have graduated from. Good morning professors and my seniors and my dear friends. Myself Ashmita and I am graduated from CM Science College. Thank you. Good morning professors, my seniors, my dear friends. Myself Jaya Jha. I am graduated from CM Science College, Dargah. Thank you. Good morning, I am Anamika from CM Science College. Good morning, Professor, and my senior and my junior, friends. My name is Neha Siddiqui. I have done graduation in BSc CM Science College, Darbhanga, and leader of Joint Secretary CM Science. Thank you. Good morning professors and my seniors and my friend. My name is Sabkat Nega. I am graduated from SMRC College, Samastipur. Respected principals and professors, seniors and my dear friends. My name is Uzma Dani and I have completed my graduation degree from CM Science College. Very good. ग्रामेटिकल एरर नहीं हुआ। तब से आप लोगों को कह रहा हूँ I have graduated from या I am a graduate of from I am लगाओगी तब ग्रेजुएटेड नहीं होगा। I have graduated इसने ठीक कहा, कोई एरर नहीं था। चलिए
Good morning, sir and madam, and all of the present in this hall. My name is Kishori Jha, and I have completed my graduation from CM Science College. Good. I have completed my graduation. ठीक है, very good. Good morning everyone. Myself Aditya Raj, and I have completed my graduation from Marwari College, Darbhanga. Good morning. My name is Digvijay Kishore Jha. I have completed my graduation from RK College, Madhubani. Good morning to all of you, my dear friends, sir and ma'am. I am Satyan Kumar. I am graduated from CM Science College in Botany. Good morning all of you. My name is Suman Kumar. I did graduation from CM Science College. अब सीनियर्स जो इंटरेस्टेड हैं सिलेबस के बारे में जानकारी लेने के लिए आप बैठ सकती हैं, अन्यथा आप सर आए हुए हैं, आप लोग ऊपर क्लास कर सकते हैं. रिसर्च स्कॉलर्स, गो ऑन डेस्क एंड डू योर रिसर्च. Especially I request to Professor K.K. Sahu come on desk and deliver his talk on syllabus. आप लोग जितना भी न्यू कमर हैं आप लोग बैठिए, सिलेबस के बारे में जानकारी लीजिए. इसके बाद आप लोगों का अगर टाइम बचता है तो क्लास एक स्पेशल लिया जाएगा, अदरवाइज डिले होने के बाद छोड़ दिया जाएगा, कल से क्लास. Thank you. मेरा नाम के साहू है. आवाज़ जा रही है ना? मैं इस विभाग में बॉटनी के प्रोफेसर पद से रिटायर किया हूँ. बड़ी मेरा एक और रोल था विश्वविद्यालय में, यहाँ के विकास पदाधिकारी डेवलपमेंट. राज आप लोग आगे आ जाइए. ठीक है, आवाज आ रही है ना? दिखाई पड़ रहा है ना? ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होगा, गौर से देखना है. ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है, इस इंडक्शन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव मालूम है आपको इंट्रोड्यूस करना है अबाउट द टीचर्स, about the facility available in the department and about the syllabus that you are going to cover in the coming years, in the 2 years. हमको इस इंडक्शन प्रोग्राम में इस विभाग में जो व्यवस्था है वो छोटा मोटा हल्की जानकारी मिल गई है. क्लासरूम एक यहाँ है, एक क्लासरूम नीचे है, 2 क्लासरूम ऊपर है, लेबोरेटरीज है, रिसर्च लैब्स है, ये सब देखिएगा, लाइब्रेरी है. ये तो डिपार्टमेंट का एक फैसिलिटी है जिसको आप अवेल करें. महत्वपूर्ण बात जो पढ़ना क्या है, हम ये 2 साल में कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे परीक्षा देंगे और किस तरह के किस पेपर पर किस टॉपिक पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है, कैसे यह डिजाइन किया गया, इस पर हम फोकस करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे. आप सभी जानते हैं कि आप जो अभी डिग्री लेके आए हैं वो एनुअल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, 20 साल में एक बार परीक्षा होती थी और उस परीक्षा से आप डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 3 साल परीक्षा दिए और वो पास किए. वहाँ पर वो सिस्टम नहीं था, सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम नहीं था.
यह जो एनुअल सिस्टम जो सेमेस्टर बेस्ड चेंज हुआ है पढ़ाई करने का, इसमें क्या किया गया है कि पूरे 2 साल के पढ़ाई को 4 खंड में सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 किया गया। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, 6 महीना सेमेस्टर 1, 6 महीना सेमेस्टर 2। फिर सेकेंड ईयर में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। हर एक सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ का, उसमें पढ़ाई नियम का 90 दिन ही होना है, 90 डेज होना है, 3 मंथ ही होना है। और कोर्स के डिजाइन ऐसे किए गए हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा कम समय दिया गया है, कम पेपर पढ़ने के लिए। और सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में जो है वो ज़्यादा पढ़ाई करें। आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कम पढ़ाई क्यों है, फोर्थ सेमेस्टर में कम पढ़ाई क्यों है? एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, जिसको समझना, क्लास स्टार्ट होना, इसलिए वहाँ पर एक पेपर कम है। और लास्ट सेमेस्टर में 2 पेपर कम कर दिया गया। 2 ही पेपर पढ़ना है, 2-3 पेपर पढ़ना है, एग्जाम देना है, वहाँ पढ़ने की तैयारी के लिए ज़्यादा समय दिया। और सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 का है। हर एक सेमेस्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना दूसरे से नहीं। उसमें कौन से पेपर हैं क्या नहीं है वो हम लोग देखेंगे। तो आप एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में जंप करो। सेमेस्टर सिस्टम एक सेपरेट एक परीक्षा होगी, वो सेमेस्टर सिस्टम का है। एक और चीज़ यहाँ किया है, वो क्या किया, क्रेडिट सिस्टम। आप जो क्लास में जो आए हैं, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, जो 2 साल पहले लागू हुआ है, या इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है इसको समझो। जो भी आप पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसमें आप 100 नंबर में कितना प्रतिशत आया उससे आप पास करते थे। फर्स्ट दिन इतना पर, सेकेंड दिन इतना पर। लेकिन ये देखा गया नेशनल लेवल पे कि अगर आप कोई विषय में पढ़ाई करते हैं, परसेंटेज से पास कर देते हैं, तो सिर्फ अपने विषय में जान गए, बॉटनी पढ़ लिए, बॉटनी का जान गए। लेकिन अगर आप बीच में कहीं बदलते हैं या आप शहर छोड़ते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, कर्नाटका में कहीं गए, तो वहाँ का सिलेबस थोड़ा कुछ और रहेगा, यहाँ का सिलेबस कुछ और रहेगा। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि बिहार में भी सिर्फ पीजी के लिए ही CBCS लागू किया गया है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ रखे गए हैं जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। वो मार्क्स के साथ साथ क्रेडिट देते हैं। वह एक पेपर में 5-5 क्रेडिट है, एक पेपर में 5 क्रेडिट है। अगर आप एक पेपर पास करते हैं तो 5 क्रेडिट मिल जाते हैं। पूरा हम देखेंगे अभी क्रेडिट कैसे कैसे क्या हुआ। एक क्रेडिट जो है 10 घंटे के पढ़ाई को एक क्रेडिट कहते हैं। आप सिलेबस जब खोल के देखेंगे तो पूरे आपके हर एक पेपर में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 5 क्रेडिट के लिए बनाया होगा। हर एक एक क्रेडिट के लिए कहा जाता है। अभी फिलहाल क्रेडिट का अचीवमेंट एक टारगेट नहीं रखना है। वो क्रेडिट का जो होता है, परीक्षा का जो लास्ट होता है, तो क्रेडिट अलॉट होता है। और वहाँ पर जो मार्किंग जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कुछ दूसरे सिस्टम से आता है, जो दिखाएंगे कैसे मार्किंग होता है। यह एक फंडामेंटल चीज़ है कि सेमेस्टर सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम। और तीसरा चीज़ है चॉइस बेस्ड। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया। तो चॉइस बेस्ड क्या है? आपको बॉटनी पढ़ना है, बॉटनी के अलावा भी कुछ पढ़ना है क्या? वहाँ की चॉइस है क्या? हाँ, कुछ चॉइस दिया गया। जैसे बॉटनी में जो 4th सेमेस्टर में जो आपका जो इलेक्टिव पेपर्स होंगे, चॉइस बेस्ड आपका जो पेपर होगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल यहाँ 2 ही ऑप्शन है, लेकिन बॉटनी से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ होते हैं जो एडवांस होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसे बहुत तरह के ब्रांचेज हैं जो इंडिपेंडेंट पेपर्स होते हैं। उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए आपको 2 ऑप्शंस आपको यहाँ लेना पड़ेगा। जो मर्जी आप साइकोजेनेटिक्स से स्पेशलाइजेशन कीजिए या फिर आप पैथोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कीजिए। और 4th सेमेस्टर में 2 पेपर बॉटनी का चॉइस बेस्ड है। जो आप चॉइस बेस्ड में आप जो आपको मर्जी आपके इंटरेस्ट है वो पेपर को आप पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल बॉटनी में 2 ही चॉइस बेस्ड है आपके स्पेशल पेपर का। ये हो सकता है आपके आते आते कि 2 पेपर और इंक्लूड हो जाए।
चॉइस लिस्ट में बॉटनी से एलाइड सब्जेक्ट तो है ही, और बॉटनी से बियॉन्ड, बॉटनी छोड़ के आपको मर्जी है कि हम म्यूजिक पढ़ लें, म्यूजिक फिलोसफी पढ़ लें, आप मर्जी है कि ड्राइंग सीख लें, आपको मर्जी है किसी उर्दू पढ़ लें, मर्जी हो कि आपको फिलोसफी या वेदा पढ़ लें, योगा पढ़ लें। इस तरह के पेपर भी हैं जिसमें कि आपको एक पेपर ऐसा है कोर्स पेपर में जो अक्रॉस द बॉटनी आपके चॉइस के हिसाब से ले सकते, इसको बास्केट पेपर तो सेट करना पड़ता है। क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालय में उतना अच्छा एक्सपर्ट नहीं बना था, तो एक ही चीज़ दिया गया था पढ़ने के लिए, वह है इथिकल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड इथिक्स के है, वो ह्यूमन राइट एंड इथिक्स का है, वही पेपर दिया गया था। लेकिन आपके पढ़ते पढ़ते 2-3 पेपर और आ जाएंगे और से एक आपको बॉटनी के अलावा अदर देन बॉटनी हो गया। 3 और पेपर ऐसे हैं जो कि बॉटनी से लेना देना नहीं, जिसमें हम लोग देखेंगे अभी, जिसमें जो कहते हैं AECC एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, और एक होता है AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, एक कंपल्सरी कोर्स और एक से इन्हांसमेंट कोर्स। तो वह चीज़ क्या है उसको थोड़ा देखेंगे। तो आपको यह समझ में आ गया कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, 4 भाग में खंडित कर दिया है। एक सेमेस्टर में पास करके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर अगर छूट गया है, गड़बड़ा गया है, तो आप नहीं पास कर पाए तो उसके लिए आपको प्रोविजन मिलता है उस पेपर को देने के लिए। सेमेस्टर सिस्टम का ये फायदा है। दूसरा आपके चॉइस बेस्ड का मीनिंग समझ में आ गया, और क्रेडिट सिस्टम क्या उसको होता है। आइए हम लोग जल्दी जल्दी देख लें कि कैसे कैसे नियम कानून सरकार ने दिया है, बनाया है, जो यूनिफॉर्म किया गया है पूरे इंडिया भर में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। इस पूरे में कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, यह 4 तरह का है। कोर कोर्स का मतलब हो गया बॉटनी, यहाँ के लिए कोर कोर्स का बॉटनी, केमिस्ट्री में कोर कोर्स हो जाएगा केमिस्ट्री, मैथ का होगा तो मैथ, कोर कोर्स हो गया। कोर कोर्स में कितने पेपर पढ़ने हैं, पढ़ के बताइए। 14 + 2, 14 कोर कोर्स, और 2 पेपर जो है वह इलेक्टिव कोर्स है, लेकिन इलेक्टिव कोर कोर्स से रिलेटेड, अदर देन बॉटनी नहीं है। विच ऑल टुगेदर आपको बॉटनी वाले पेपर 16 पढ़ने हैं, जिसमें कि एक्सक्लूसिव बॉटनी 14 है, और 2 ऑप्शनल बॉटनी है, जो एडवांस बॉटनी का है वह 2 है, वह उसको कहलाता है इलेक्टिव कोर्स, जो आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। उसके बाद एक पेपर है AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, देखेंगे क्या चीज़ पढ़ना है उसमें, कुछ यहाँ पर पेपर दिए गए हैं। उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, 2 पेपर हैं, और एक है DSC या सीधे हम लोग उसको कहते हैं डिसिप्लिन इलेक्टिव, DE कहते हैं, वह एक पेपर है। ये जो नीचे वाले जो 3 पेपर हैं यह क्वालिफाइंग मीन्स जस्ट पास कर जाए, उसमें आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके मेजर क्लास के लिए नहीं आएंगे। जैसे आप कहते हैं ओवरऑल मेरा MSc किया 70% से, तो वो 70% जो कहलाएगा सिर्फ कोर कोर्स इसी का ही आएगा। वह इस पेपर का जो है, तीनों जो नीचे जो पेपर दिए गए हैं 3 पेपर, उसमें वह मार्क्स नहीं जुटता है, सिर्फ क्वालिफाई करना। और यह क्वालिफाइंग पेपर जो है वो 3 है, जो कि विशेष पढ़ाई नहीं होती है, आपको खुद पढ़ना पड़ता है, उसके तरीके हमको बताए जाएंगे कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पर टर्म आता है कोर्स, जो पेपर कहलाता है। टेक्निकल टर्म कोर्स है, लेकिन हम लोग तो कॉमनली पेपर के नाम से जानते हैं। और ये क्रेडिट सिस्टम में मैंने बताया कि हर एक पेपर को क्रेडिट बना हुआ, एक पेपर 5 क्रेडिट का है। एक क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, 10 आवर्स ऑफ टीचिंग, 10 घंटे जो पढ़ाई होगा, हाँ 10 घंटे की जो पढ़ाई होगी वह कहलाएगा एक क्रेडिट। हम लोग सिलेबस में देखेंगे क्या है।
इसे समझ में आ रहा है। कोर कोर्स, एक कोर्स हम इसे बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत चीज़ बाकी है बताना। A course which should compulsory be studied by a candidate as a core requirement on the basis of subject in MSc studied as a term of core course. इलेक्टिव कोर्स बॉटनी का ही है, 4th सेमेस्टर में है। एक हमारे पास जो बताया कि एक कोर्स है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, उसके साथ साथ है यह डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। यह ने बताया कि आप कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, वो कब पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ 4th सेमेस्टर में पेपर है। और वहाँ पर कुछ नाम हमारे विश्वविद्यालय ने बदल के सिर्फ रख दिया है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स को डी कर दिया गया है, डिसिप्लिन इलेक्टिव किया गया। उसमें फिलहाल अभी एक ही पेपर है, लेकिन वह हम लोग आप लोग को उसमें आते आते एक पेपर और आ जाएगा। और यह चीज़ 4th सेमेस्टर के लिए है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में स्वच्छता अभियान पढ़ना है एक पेपर में, दूसरा आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट पढ़ना है या यौगिक पढ़ना है, बास्केट में से यह अलग अलग पेपर आपको उसमें दिखाई पड़ेगा, वो आपको साइड में है वो है। उसके बाद डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट इत्यादि भी हैं जो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। 4th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे इसी कोर्स में तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम डिसर्टेशन करें, बाहर जाके पढ़ें या डिपार्टमेंट में काम करें, एक ऑप्शन वहाँ भी आता है। यही है हमारे डाइवर्सिटी, हमारे चॉइस बेस्ड के लिए। यह टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। यह टेबल जो है आप लोग के पूरे सिलेबस का निचोड़ है, जितना कौन कौन सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर पढ़ने क्या नहीं पढ़ने हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं, कितने कितने क्रेडिट के हैं, वह एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें 4 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। फर्स्ट सेमेस्टर में है नंबर ऑफ पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने हैं? 5। सेकेंड थर्ड में कितने पढ़ने हैं? 6। और लास्ट 4th सेमेस्टर में ओनली 3। पहला 1, फिर पहला 5, दूसरा 6 और तीसरा 3। कितने पेपर पढ़ने हैं आपको? एक सर सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ कोर्स पेपर, दूसरा है क्रेडिट पर पेपर में क्रेडिट कितने हैं, टोटल क्रेडिट कितने हैं। हमारे पास फर्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट सेमेस्टर जब पास करेंगे तो कितने क्रेडिट के लायक हो जाएंगे आप? 25। और हर एक पेपर में 5-5 क्रेडिट है, 5 पेपर है, 5 × 5 25 क्रेडिट आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप लेंगे। और आवर कितना होगा? घंटा एक सेमेस्टर में 250 घंटा, 10 घंटे का एक क्रेडिट होता है, पूरा 25 क्रेडिट होता है, 250 घंटा एक्सपेक्ट किए जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पेपर कोर पेपर 4 और एक पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, वह क्वालिफाइंग एक है जो यहाँ पर नाम रखा गया AECC एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। उसमें एक ही पेपर सारे सब्जेक्ट के लोग को पढ़ना है, चाहे वह हिंदी में हो, केमिस्ट्री में, मैथ में। जो AECC आप पढ़ेंगे वही AECC वाले हिंदी वाले ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले पढ़ेंगे। कंपल्सरी कोर्स है, सबको पढ़ना होता है। सेकेंड सेमेस्टर में पेपर बढ़ गया है, 6 हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो कंपल्सरी पेपर लास्ट में एक है AECC, वह AECC नहीं है, AEC है। वहाँ पर क्या है, ये कंपल्सरी नहीं है, आप उसमें ऑप्शन रहेंगे 3-4 पेपर, उसमें एक सेलेक्ट करना होगा। इसलिए सेकेंड ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में जो एक इलेक्टिव पेपर है जो वो एक ही है, बास्केट से लेना है। थर्ड में 6 पेपर है आपके, जिसमें कि एक पेपर जो है वह AECC में है, फिर वह कंपल्सरी है, वो सब लोग पढ़ते हैं। दिखा देंगे हम लोग क्या पढ़ना है। 4th सेमेस्टर बड़ा क्रिटिकल सेमेस्टर होता है।
फोर्थ सेमेस्टर जो पेपर कम पढ़ने होते हैं, लेकिन आप लोग के लिए क्रिटिकल इंसेंस क्या है, वही आपका फ्यूचर बनाता है। आप क्या करना चाहते हैं, टीचरशिप में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको पूरे ओवरऑल की तैयारी करनी होती है। यही नहीं, एक दो पेपर कहीं मिस कर गए सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, उसको भी आप मेकअप कर सकते हैं। वो आपके लिए वहाँ पर कम दिया गया है। 2 ही पेपर आपको कोर कोर्स है और उसके साथ एक हमारे पास जी है, जनरल इलेक्टिव है, जो कि आपको पढ़ना है, फुल फ्लेज पेपर पढ़ना है, लेकिन क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाई करना है। यह एक टोटल अगर देखेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे कि पूरा कितने पेपर पढ़ने हैं आपको, 20 पेपर पढ़ने। 20 पेपर में फर्स्ट ईयर में 5, सेकेंड सेमेस्टर में 6, थर्ड में 6 और 3 20। उसके बाद हमारे पास टोटल क्रेडिट कितने हैं, 100 क्रेडिट, और पूरे क्रेडिट पूरे हमारे पास कितने हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं। आप 16 और 4 20 पेपर हमको पढ़ना है। ये टेबल और इंटरेस्टिंग है, ये टेबल में थोड़ा इलोबरेट किया है, उसी चीज़ को थोड़ा सा और बताया गया है। बॉटनी के लिए से भी टेबल बना, बॉटनी में हर एक पेपर पे ओवरऑल आइडिया दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ना है। एक चीज़ गौर करें, पेपर का नाम दिया गया है, पेपर का नाम दिया गया, ध्यान देंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फर्स्ट पेपर पढ़ना है उसका नामांकन किया गया है M.Bot CC1। पेपर 2 है वह M.Bot CC2। M मीन्स मास्टर डिग्री, बॉट मीन्स बॉटनी और CC मीन्स कोर कोर्स। कोर कोर्स, कोर कोर्स आपका बॉटनी जो है आपका कोर कोर्स है यहाँ पर। M.Bot CC1, M.Bot CC2, इसी अलग अलग विषय में जो होंगे उनका होगा M.Chem CC1, M.Chem CC2, CC सब चीज़ होगा। जनरल आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में कि भाई कोर पेपर देखना है तो ये बॉटनी का कोर कोर्स नंबर 2 CC2 मेरा गड़बड़ है, CC2 में कितना है, वहाँ पर जरूरी नहीं आपको बताना है कि इसे हमको ये चीज़ M.Bot CC, आपकी कोर कोर्स का हमारा बॉटनी में है, लैंग्वेज हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। गौर करें एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक AECC1 है इसमें भी M.Bot जोड़ दिया गया है, जबकि यह कंपल्सरी अक्रॉस द ऑल सब्जेक्ट्स है, सबको पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर M.Bot लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ AECC सबका एक होता है, इसलिए AECC1 है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में देखेंगे आप कि हमारे पास जो ये कॉलम है वह है मार्किंग का कॉलम। एक पेपर में कितने मार्क्स, 100 मार्क्स को 2 पार्ट में बांटा गया, 70-30, जितने कोर कोर्स हैं उसको 70-30। 70 की परीक्षा विश्वविद्यालय लेती है, वह जो विश्वविद्यालय जो परीक्षा लेती है उसका नाम दिया जाता है ESE, इंड सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर का जो इंड होता है वह जो एग्जाम होता है वह कहलाता है ESE। और डिपार्टमेंट में जो परीक्षाएं होगी, जो हम लोग परीक्षा लेंगे, उसका नाम है CIA, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो विश्वविद्यालय परीक्षा लेगी उसका नाम है ESE, इंड सेमेस्टर एग्जाम। पहले एग्जाम होगा, वो जो एग्जाम होगा विश्वविद्यालय लेगा उसको कहते हैं ESE। और हम लोग यहाँ पर 2 बार परीक्षा लेंगे आपको हर एक सेमेस्टर में, उसको क्या नाम देंगे, CI, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट का माने क्या हो गया, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, इंटरनल मतलब आंतरिक, असेसमेंट मतलब आपको एक्सेस किया, जांचा जा रहा है कितना क्या लिखिए। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट हम लोग करेंगे और वो हम आप लोग को असेसमेंट करेंगे, उसमें 30% का मार्किंग हम लोग करेंगे और 70% का मार्किंग विश्वविद्यालय करेगा। वह विश्वविद्यालय जो परीक्षा लेगा वह कॉपी आपका या प्रैक्टिकल कॉपी वह यूनिवर्सिटी जाएगा, उसमें मार्किंग करेगा। और ये 30 नंबर प्रत्येक पेपर का जो है वह हम लगातार 6 महीने में आपको एग्जामिन करते रहेंगे कि आप कैसे करें, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट करते रहेंगे।
उसमें 2 हम लोग लिखित परीक्षा लेंगे हर एक पेपर में। क्या परीक्षा लेंगे? आप पढ़ें, लिख के दिखाइए। फिर आपका रेगुलरिटी की जांच होगी, आप रेगुलर रहे कि नहीं। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पास करेंगे कि आप झेड़ा तो नहीं कर रहे हैं, लोग से दोस्त बना है ना, ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ी है ना, तो ज़्यादा मार्किंग करेंगे। आप अपने मिलजुल के पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा मार्किंग करेंगे। आपका स्वभाव अच्छा है कि नहीं, इसको मार्किंग करेंगे। आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, उस पर ही मार्किंग करेंगे। आप उनसे दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो और मार्किंग करेंगे। ये सब बिहेवियर हम लोग को दिया गया है कि बच्चा को जो है प्यार से पालो, प्यार बांटो, दुनिया को अच्छा व्यक्ति पैदा करो। उसकी पढ़ाई भी आप बॉटनी के साथ करें। लेकिन हम वहाँ पर जांचते क्या क्या चीज़ें, एक तो हम जो पढ़ाते हैं तो खुद अपने जांचते हैं कि हम पढ़ाएं तो समझे अपने लिख के दिखाओ। तो लिखित परीक्षा लेंगे हम लोग, 2 बार लेंगे, हर एक पेपर में लेंगे। उसके बाद हम लेंगे कुछ, आप लोग को कुछ काम देंगे, जैसे कुछ पढ़ा देंगे, आप कहेंगे जब तुम पढ़ा के दिखाओ, आप पढ़ाने का कला आप सीखेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ने इतना अच्छा बोला है, इतना अच्छा बोला है, कुछ वो एबिलिटी खास है। फिर देखेंगे क्या कुछ देंगे वर्क आप लोग को, इधर घर से बना के ले आना होमवर्क, कुछ देंगे फील्ड वर्क, कुछ प्लान करके ले आओ। ये सब कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट की जांच होती है और उसमें 30 नंबर का मार्किंग होता है। उस 30 नंबर में या 70 नंबर में क्वालिफाइंग मार्क्स 45% है। अगर 45% से कम CIA में या ESE में आ गया तो उस पेपर में आपको अटक जाए, वो क्वालिफाई नहीं कर उस विषय में, उस पेपर में आप फेल कर जाएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, दोनों CIA भी और ESE भी। तो यह हमारे पास एक 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का बना हुआ है सिस्टम, जिसको ESE कहेंगे। वो हर एक पेपर में गौर करें, पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में 73। लेकिन जो AECC है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स जो है, उसमें कितना लिखा हुआ है? 50-50। उसमें इंटरनल असेसमेंट 50 नंबर हम लोग को दे रहा है, 50 नंबर का परीक्षा विश्वविद्यालय लेगा और वो क्वालिफाइंग है, जस्ट पास करना है। लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब कितना है? 45%, कम से कम 45% चाहिए। उससे ज़्यादा मार्क्स लाइए तो बहुत अच्छी बात है, और उससे कम लाइए तो उस पेपर पे आप लोग रुक जाएंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने पहले ही बताया कि जब रिजल्ट निकलता है MSc करने के बाद, उसमें आपको सब में क्वालिफाई करने के बाद जो कितना परसेंटेज आता है, वो परसेंटेज जो निकाला जाएगा ग्रेड की बेस से, उसमें ये सब AEC वाले को नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ क्वालिफाई देखा जाता है। उसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में तरह तरह के पेपर बने हुए हैं, और गौर करें इस चार्ट में हर एक पेपर का मेजर टॉपिक भी लिखा हुआ है। जैसे पेपर 1 में पढ़ना है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और ब्रायोलॉजी। आप जानते हैं तीनों चीज। फाइकोलॉजी हम बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? फाइको, PHYCO, फाइकोलॉजी, उसको नहीं पता है। माइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, अरे भाई अलगी, फंजाई और ब्रायोफाइटा। अलगी के साइंस को कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइको PHYCO, PHYTO क्या होता है? फाइटो प्लांट, फाइको मीन्स अलगी। जैसे फंजाई, फंजाई को माइको, MYCO, माइको। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और दूसरा बायोलॉजी, ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट। तो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना क्या है? अलगी, फंजाई, बायोफाइट। फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो आप पढ़े भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद थर्ड CC3 में क्या है? टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी। उसके बाद सब कुछ तो पढ़े हुए होंगे। पेपर 4 CC4 फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ प्रैक्टिकल, फुल फ्लेज प्रैक्टिकल। इस वह प्रैक्टिकल में 70-30 यहाँ भी है, 30 हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल करेंगे प्रैक्टिकल में, और 70% का जो है एक्सटर्नल आके परीक्षा लेंगे, विश्वविद्यालय परीक्षा आके लेगी। तो वहाँ प्रैक्टिकल फोर्थ पेपर जो है CC4 वह प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल किसका है?
पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के मिला के जो टॉपिक आएंगे उसके प्रैक्टिकल CC4 में किए गए हैं। जो हमारा कोर्स के जो 4 पेपर हैं प्रैक्टिकल बेस है, उसमें भी 70-30 का उसमें भी रूल लगता है। लेकिन हमारे पास जो AECC के उसे 50-50 का रोल है। सेमेस्टर 2 में उसी प्रकार से पेपर सब है, तो ज़्यादा भी समय नहीं देना चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसे आपको देखिएगा। सिर्फ सेमेस्टर 4 का जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि बॉटनी के एडवांस पेपर, आपके इंटरेस्ट के पेपर, एडवांस बॉटनी की पढ़ाई आपको 4th सेमेस्टर में 2 पेपर की होगी, जिसको हम लोग वहाँ पर CC ना करके क्या नाम देते हैं उसको, EC, इलेक्टिव कोर्स, EC, इलेक्टिव कोर्स, वो पेपर है वहाँ पर, और वो इलेक्टिव है जो वहाँ पर लेंगे, जो MSc में करेंगे, और उसमें लास्ट ईयर में एक फुल फ्लेज पेपर दूसरे विषय का साइकोलॉजी, फिलोसफी, म्यूजिक पढ़ सकते हैं, विश्वविद्यालय अगर प्रोवाइड करती है तो, अभी फिलहाल नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो यह ओवरऑल आपका रूल है। एक और चीज़ समझ लीजिए, 45% जो है पासिंग मार्क्स है। कोई आदमी जल्दी से बताए तो 70 मार्क्स में 45% कितना होगा? कोई 70 मार्क्स का 45% कितना हो गया, जो आपको परीक्षा में थ्योरी में पास करना लाना है अपना 30? सब लोग अलग बोल रहा है, सब मिल के बताइए कैसे निकालते हैं। बड़ी तकलीफ करता हूँ, हमको ही नहीं मालूम है। 31.5 हर एक पेपर में पास करने के लिए जो 70 मार्क्स का परीक्षा होगा, मिनिमम 31.5 नंबर लाना ही है, मीन्स 45% लाना ही है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कुछ शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, फुल टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे ग्रेजुएशन होता था, उसमें भी आप तरीका से पढ़ाई करेंगे कैसे हमको कम से कम 31.5% तो लाना ही है, और अच्छे से करने के लिए आगे पढ़ना। ये सब कुछ टारगेटेड अभी से बना के रखेंगे। उसी का डिटेल है, इस पे हम लोग नहीं आ रहे हैं। जो परीक्षा होगी हर एक पेपर में, उसका एक फॉर्मेट है, उसमें 3 सेक्शन होंगे एग्जाम के, सेक्शन A, B, C। सेक्शन 1 जो है वह कंपल्सरी कंप्राइजिंग 10 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, मीन्स 20 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में 20 मार्क्स हो गया ना। उसके बाद सेक्शन B वो कितने मार्क्स के हैं? 20, 40 और 30, 70 मार्क्स के पूरे परीक्षा होंगे ना। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 शॉर्ट आंसर टाइप्स, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। स्टूडेंट विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन, 5 दिया जाएगा, 4 ही का जवाब देना है। इसमें 10 पूछा जाएगा, 10 का जवाब देना है, छोड़ने ऑप्शन नहीं है उसमें ऑब्जेक्टिव में। इसमें 5 में से 4 देना है। और जो फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं? 3 का जवाब देना है, 10-10 मार्क का। और पूरे कितने रहेंगे? 5 लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 छोड़ के 3 के जवाब देने। ये ओवरऑल हर एक पेपर का यह रूल है, चाहे वो CC1 हो, 2 हो या EC हो, सबका यह रूल यह फॉलो करता है, जो 70 मार्क्स के फुल मार्क्स होंगे। ये सब सिलेबस का डिटेल है। ये देखा है आप लोगों ने? वो नहीं देखा? आप जैसे विभाग में घुसते हैं, दाहिने साइड में बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है,
वह पोस्टर आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा है कि हमको कौन सेमेस्टर में कौन से पेपर पढ़ने हैं। जैसे इस चित्र को ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि सेमेस्टर 1 में हमको CC1, CC2, CC3, CC4 पढ़ना है। यहाँ पर वो क्वालिफाइंग पेपर्स नहीं है, सिर्फ बॉटनी का हमने बना दिया है कि आपको 4 पेपर पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 में। उसमें 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट में जो जो टॉपिक है वो टॉपिक का एक थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। जैसे क्या क्या चीज़ है, जैसे एल्गी पढ़ना है, एल्गी का जेंडर कैरेक्टर पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर उसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, फिर फंजाई में क्या पढ़ना है, CC2 में क्या है। इसको अगर गौर से देखेंगे आप लोग तो आप खड़े होके वहाँ पर बाहर जो खड़े होके आप अपने पूरे सिलेबस को एट ए ग्लांस आप देख सकते हैं। सेमेस्टर 1 में क्या है, कितने पेपर हैं, कितने यूनिट हैं, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। सेमेस्टर 2 में कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन कौन से चीज़ बने हुए हैं। और ध्यान देना है जो पेपर 4 है और प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन CC1, CC2 एंड CC3, इस पर प्रैक्टिकल बेस के बने हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में क्या है और उसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में सारे पेपर में यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बना के बड़ा सा डाल दिया गया है। जाने वक्त एक बार आप सही निगाह से देख लेंगे और आप यह भी देखेंगे कि जब आप भी डिपार्टमेंट में आते हैं घर से निकल के क्लास करने के लिए, तो एक बार निकलने वक्त सोच लीजिए घर से कि हम कौन पेपर पढ़ने जा रहे हैं, कौन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वह पेपर टॉपिक का यहाँ जिक्र है कि नहीं। आप यहाँ से निकल के देखेंगे कि वो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूरा पढ़ लिया, ये पेपर बाकी है, ये पूरा एक सेमेस्टर का है, ये टच हुआ, ये नहीं टच हुआ, ये पढ़ाए सर, ये छोड़ दिए, ये नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। या ओवरऑल जो है आप पिक्चर दे के मोबाइल में फ़ोटो भी खींच के रख लीजिएगा जब कभी आपको ऐसा शंका हो। यह एक बड़ा ही इंफॉर्मेशन आपको पूरे 2 साल का सेमेस्टर वाइज बॉटनी के CC के पेपर सब यहाँ पर दे दिए गए हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं। वहाँ पर 2 EC1 और EC2 में से ऑप्शनल है, कोई एक पढ़ना होता है, और सेमेस्टर 4 में ऐसा किया गया है। ये ओवरऑल आइडिया आप लोग को मिल गया कि आपको हमको इस 2 साल बॉटनी में रख के हम बंटवा देंगे उसको क्या। ठीक, ये सब एक दिन हम का ही हाँ कर दीजिए। पहले अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। सब पहचानते ही सब लोग। एडमिशन इनके बगैर नहीं होता है, कोई भी काम आप ऑफिस का इनके बगैर नहीं होता है। इस डिपार्टमेंट की सारी जानकारी जो लेना हो आप पूछ ले सकते हैं। ये बहुत पुराने यहाँ के हैं बड़े बाबू और ये सारे चीज़ के इंचार्ज हैं, लाइब्रेरी के, लेबोरेटरी के, क्लासेस के, सब की एडमिशन के लिए, PC के लिए, कोई दिक्कत हो सर्टिफिकेट के लिए, यही सिंगल हैंडल इस विभाग को ये मजबूती से पकड़े हुए हैं। बहुत गर्व है इसका। सबसे खुशी की बात यह है कि सब जैसे महान विभूति आपके समक्ष उपस्थित हैं और हम सदैव इनकी लंबी उम्र की कामना करेंगे और हमेशा यही प्रार्थना इनसे करेंगे कि आप लोगों के समक्ष ऐसे ही आते रहें और ज्ञान का जो भंडार है ये पूरा कुछ पेपर है, आप लोग को भर लीजिएगा मेरे क्लास के बाद। ये लोग कर लीजिए, उसके बाद एक एक अपना यहीं से लेके इसमें फोटोग्राफ ले के जो रिक्वायरमेंट है वो करके हमारे करते हैं। तो आज दे पाएंगे फोटो आप लगा दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही जमा कर दीजिएगा। जो सिग्नेचर और ये सब डिटेल्स यहीं पे हम उसको जो बचेगा। ठीक, हम लोग जो अभी पूरा जो ओवरऑल आइडिया लिया CBCS के बारे में, इसका एक समरी है ये।
course duration 2 years in 4th semester. Number of papers of core course 14 plus 2. 2 किसके लिए? CC नहीं है, वो AC हो गया है, लेकिन वो बॉटनी का ही है, तो पूरा हो गया 16. अदर क्वालिफाइंग AEC 1 and 2 और AEC 1 और DAC जो है ये 1 है. AEC फ्रॉम बास्केट, मतलब नंबर ऑफ पेपर मिलेंगे, सेलेक्ट करना है. और 2 तरह के परीक्षाएं EAC और CIA, यह टर्म है जो कि आपको समझना है. इतना आप लोग आइडिया हो गया. सिलेबस, डिटेल सिलेबस वेबसाइट पे भी रखा होगा. विश्वविद्यालय का वेबसाइट lnmu.ac.in, उस पर सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके मोबाइल पे या घर पे रख सकते हैं. सिलेबस पे, सिलेबस की समझ पढ़ाई की शुरुआत है. एक कहावत है, वेल बिगन हाफ डन. अगर आप शुरुआती अच्छे से करते हैं तो जी जान लगा से करते हैं तो आधा काम पूरा हो जाता है. अगर आप यह क्लास की शुरुआत का जी जान से करते हैं, सिलेबस लेके ये समझ के तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस आपके पास होंगे, आप समझ लेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ जानते हैं, क्या चीज़ ध्यान देना है. पढ़ने के पहले जो तैयारी की जाती है वह वेल बिगन हाफ डन. आप लोग ये जो कोटेशन है काफ़ी अच्छा है. तो सिलेबस डाउनलोड करके क्लासेस का रूटीन लेकर आप वो तैयारी करके आएंगे तो बहुत ही आसानी से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे. कभी पढ़ाई को टेंशन नहीं लेना है, एंजॉय करना है, नया नया चीज़ सीखना है. एक और टिप्स दे देते हैं आप लोग को, जो कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट से मार्क्स पेज के हिसाब से जो पढ़ता है वह ज़िंदगी में अच्छा नहीं करता. नौकरी में अच्छा कर जाता है, ज़िंदगी में अच्छा नहीं करता. और जो इंटरेस्ट से नया चीज़ जानने के तरीके से, उसका जीवन में उपयोग करने के तरीके से पढ़ता है, जानता है, समझता है, तो बॉटनी के अलावा ज़िंदगी बड़ी इंजॉय करती है. अगर आप लोग इस इंजॉय के हिसाब से जानने की इच्छा से, समझने की इच्छा के लिए, इसके वैज्ञानिक पद्धति को समझने की प्रक्रिया से अगर पढ़ाई करते हैं तो परीक्षा में से को अच्छा से पास कर जाएंगे. और अगर सिर्फ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड के हमको इतना मार्क्स लाना है, पास कर जाना है, ये छोड़ दे, ये पढ़ ले, कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना सीख ले, करना है, तो बॉटनी में भले ही आप पास कर दें फर्स्ट डिवीजन से, लेकिन वो कोई काम का नहीं है. कभी भी आपको रियल लाइफ में कहीं नहीं होगा. इवन नौकरी भी नहीं मिलती है, लेक्चरशिप की नौकरी नहीं मिलती है, ना आप कोई क्वालिफाई कर सकते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ना कोई आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ना कोई आप डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करते हैं तो वह पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने के लिए है और कोई काम के लिए नहीं, कहीं उपयोग का नहीं. इसलिए हम चाहते हैं जब कोई पढ़ाई करें तो कोई इंटरेस्ट से पढ़ाई करें, जानने के लिए पढ़ें, उसकी हिस्ट्री समझें, उसके बैकग्राउंड पढ़ें, क्यों पढ़ते हैं, क्या उपयोग है मेरे लाइफ में पढ़ें. और लगे आजकल तो दुनिया में तो इंटरनेट आने के बाद इतना ब्रॉड एस्पेक्ट हो गया है. कोई एक टॉपिक खोजिए, यूट्यूब पे उसका वीडियो देख लीजिए. सर आएंगे, पहला क्लास क्लासिफिकेशन और अलगी पढ़ाएंगे, आप पढ़ के समझ लीजिएगा. आप जैसे एक बार यूट्यूब पर क्लासिफिकेशन और अलगी बेस्ड ऑन फ्रिक्स लिख दीजिए, देखिए 15 मिनट में कितना ज्ञान अर्जित हो जाता है. जानकारी अब गहन हो जाएगी. ये थोड़ा हॉबी अगर डाल दें अगर इस चीज़ को, तो बहुत ही अच्छी बात होती है. हर एक टॉपिक को जड़ से जानने का कोशिश क्लास के अलावा करना. शिक्षक पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने का कला पढ़ना तो आप लोग को है, सीखना तो आप लोग को है. किताब में खोज के ढूंढने का कला तो आपको जानना है. इंटरनेट से भूल से सर्च करके अगर चीज़ को निकालने की कला आपको जानना है. दोस्तों से, सीनियर से कैसे लिखें, कैसे अच्छे एक्सप्रेशन हो उसको लिखना है, ये आपको सीखना है. और टीचर जो है सिर्फ रास्ता बताते हैं काम करने, पढ़ना आप लोग को होता है. तो मेरा टिप्स ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ाई करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉटनी के जड़ से समझने का प्रैक्टिकल अप्रोच, लाइफ में इसका उपयोग बॉटनी का कोई चीज़ का मार्केसिया आप पढ़ रहे हैं, उसका जीवन में क्या उपयोग है, कैसे पहचानेंगे, हमको मिल जाएगा रास्ता में. इस तरीके से अगर जानेंगे तो दूसरा ही चीज़ होगा पढ़ाई करने का. हमको पिछले बैच में आपके जस्ट 2 साल सीनियर बैच जो इस बार पास किया है वह नेट और DRF क्वालिफाई किया. हम तो दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं लाइफ साइंस में बिहार से निकलने वाले को भी जो नेट JRF क्वालिफाई किया उसी से. बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उस लड़के में एबिलिटी थी, वह पढ़ता था, लिखता था, बोलता था. वो बहुत अच्छा बोलता भी है, नॉलेज भी है, उसको पढ़ता है, बोलता है. ये सब क्वालिटी आपको 2 साल में डेवलप करने का मौका मिला है.
इसको आप उपयोग कीजिए, जीवन को बढ़ाइए। बस आज इतना ही। कुछ पूछना है तो बताइए, डिपार्टमेंट के बारे में, सिलेबस के बारे में, लेबोरेटरी के बारे में कुछ हो तो 5-7 मिनट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप लोग बहुत लोग बाहर से आए हैं, नरहन से है, मधुबनी से है, समस्तीपुर से है, SMRCK से है। सब लोग को समय पर यहाँ आना है ना। क्या आप लोग उपाय करेंगे? आप मैडम बहुत अच्छे से बात बताएं। 70% एसेंशियल, 25% अटेंडेंस आवश्यक है, और अटेंडेंस पर लोग ध्यान दीजिएगा, समय पे आइएगा, पढ़िएगा। और ये 2 साल एक्सक्लूसिवली बॉटनी विभाग को दे दिया है, दुनिया का सारा काम छोड़ देखिए कैसा आपका जीवन कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर क्वाइट लिसनिंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत तरह के उपाय होते हैं, सब आप लोग को देखना चाहिए ना। ठीक है, आप लोग एक एक करके आइए, फॉर्म ले जाइए अपने से भर के और वहाँ जमा कर दीजिए। एक करके आप इधर ये पता है कि हम लोग भर के ऑफिस में जमा कर दिया सकते हैं।
मतलब कि आपको खड़ा कर तुम दोनों आप कुछ नोट कर रहे हैं आप लोग, अटेंडेंस अपना दे दीजिएगा, 2 हाथ से आप नोट करिए। कॉपी डालिए, कॉपी का फोटो लीजिएगा। आओ कितना रोल नंबर? 34 आपका 4 जाएंगे सर। नाम नहीं लिखना होगा। अपना अपना रोल नंबर बोलते जाइए, तो ऊपर से बोलिएगा रोल नंबर 1 2 3 4 for the third 5 6 7 roll 7 8 9 10 Yes, sir. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 roll 21 22 23 Yes, sir. 24 24 25 26 27 28 29 30 Yes, sir. 31 32 33 34 तो है 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 और किसी का छूटा है रोल नंबर? सबको हो गया? अटेंडेंस सबका हो गया? इसमें 23 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। मार्च 3 2 5 3 8 3 11 2 13 2 15 2 17 3 20 3 23 बस इतने ही स्टूडेंट आए थे आज, तो चले गए थे। एक बार में है 2 हम लगा लेंगे, 2 डजन हम कहे ही थे और 2 स्टूडेंट अंदाज से ही कहे थे आप लोग एग्जैक्टली 2 डजन हैं। सर ने बोला सब कुछ एडमिशन रिसिप्ट नंबर के सामने जो डेट लिखा हुआ है ना, आपका एडमिशन जिस डेट को हुआ है उसी डेट में आज के नहीं। एक बार फिर से सब कुछ सुन लीजिए। जो आपका एडमिशन रिसिप्ट नंबर है ना, उसके सामने जो दिया हुआ है डेट
डेट उस दिन का लिखना है जिस दिन आपने एडमिशन लिया होगा, जो आपके सीट नंबर पे।
20 है ना, 30 3 22 ना, 22 ही ना, 30 22 ही होगा ना, नहीं 21 से 22 है ना, नहीं तो डेट तो वही लिखूंगा ना, समझ गई ना। हेलो, बस मुझे पता है फॉर्म गलत हो गई है, मतलब ये सब बस लिख के जमा कर दो और कर दो। हाँ 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 फॉर्म कहाँ हो तुम? बस हो गई है 5 मिनट में तो मनोकामना मंदिर में तो गई है। देख रहा है अच्छा छोड़ कर रुपया का फोन कर
समझिए बच्चा किसी नाम लिखेंगे पूरा अस्मिता कुमारी अस्मिता की सुस्मिता सब चलेगा हाँ स्पेलिंग बोलो SMITA कुमारी राम अच्छा कॉलेज का नाम बोलो
यहाँ पहुँचे थे तो ये बैठा के लेके आए मुझे बैठा दिए हैं यहाँ पर और अपने वो एबसेंट है नहीं, गए हैं कभी। हाँ हाँ उसके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन था कहीं पर बैठी, हाँ हाँ कहीं पर बैठी था। हेलो जी, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी जी, हाँ हाँ जी जी।
जी 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 थैंक यू। ये सिस्टम मत छुआ कर, ये गलत बात नहीं सिस्टम नहीं, फिर भी नहीं, क्या बात है, हम लोग काम भी लेके आए हैं, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। क्या बोल बॉस साहब आज बॉस है, आज साहब बॉस आज हैं आप, आज का बॉस आज मतलब लाल करते हुए जंजीरा है। आप
आपको हम फ़ोन करते हैं ना, आप आ कहाँ आएंगे ये बताइए मुझे। हाँ, तो गाइड कौन है आपके? प्रतिभा गुप्ता है। तो उनको कह दीजिएगा मेरा नाम, जो बोले है वही नहीं हुआ है। बाहर कब जा रहे हैं?